Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back. We are still in progress of managing brands over geographic boundaries and market segments. We have talked about market concentration and market diversification, and their trade-offs in terms of how it would behave. We have talked about the product, its diversification, and its concentration. So let's take this further, and this discussion I hope would be fruitful for anybody who is intending on taking his or her business to internationally and to other countries. I wanted to say, and it would give everybody a food for thought as to why this is not as simple as it looks. So we have talked a lot about things, and now if you look at this Unilever's global portfolio, you would be able to understand as to how it reacts and how they are concentrating in different countries. Now the major chunk of their portfolio is foods, where it is very attractive and highly competitive. Then they have detergents, they have personal products, and then they have specialty chemicals. If you look at this box on the left hand side, so global corporate portfolio product and businesses says that the food is high in competitive strength and attractiveness, and then it has detergents, then personal products and specialty chemicals. When you talk about food market attractiveness and competitive strength, their ice cream is is growing very well, as or well aware that their brand Walls is very strong. So all over the world, Walls is recognized and holds a high esteem among its consumers. Then they have tea, which is Lipton Yellow Label, and then they have Supreme over here, where otherwise they have Brook Bond in other parts of the world. Then they have margarine, we have Blue Band, but it's Flora, I guess, in the rest of the world, which is very popular. Then they have meal sauces, they have dressings, they have cheese, they have frozen food, and these products are marketed in North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, Africa, Middle East. Now looking at it, Europe is high in attractiveness. Their concentration is very high in Europe. Then competitive strength is, the attractiveness is North America is high, but so competitive strength is less. So taking Europe into consideration, these are the countries which are have got very high concentration of Lever Brothers food category, where Germany, UK, Netherlands and Denmark. Then France, Italy and Greece are on the lower side. These are the ice cream brands which are available in these markets, which has Magnum, Carte d'Or, Veneta, Solero, Calipo and Ranier. So Ranieri, this is a sort of, I guess, Italian version. So you are looking at, you can plot this portfolio for any of the products if you have the right data with you.
Having said that, it's not as easy as it looks. See, you could have, they could, the detergents could be, also put into this portfolio, but you have to make a, separate boxes for them so that, it doesn't overlap things, and it is, clear in that respect. So, the competitive strength and the countries they're operating in, the regions, they are all, interconnected. See, so the higher the market attractiveness, the more competition you would face when you go abroad, because obviously there would be other people who would also be following, the same data that is available to you. So they would also bring in their products to sell. यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखें कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको हर ब्रांड या हर कैटेगरी को उन्होंने अलग अलग मार्क किया हुआ है. यहाँ पे ये देखें, आइसक्रीम, टी, मार्जरीन, इसलिए कि ताकि आपको पता रहे कि हम जो है क्या कर रहे हैं, और वो जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने क्या करना है, किस तरीके से उसको मूव करना है. ठीक है ना. हमें उसमें मार्केटिंग डॉलर्स कितने डालने पड़ेंगे, कितने मार्केटिंग प्रोग्राम्स जो है हमें अंडरटेक करने पड़ेंगे, सो दैट वी कैन गेन सम सॉर्ट ऑफ अ ग्राउंड ओवर देयर. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और कई दफ़ा वो जो हमने नेमिंग वाला पढ़ा था ना चैप्टर, वो जो नाम है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर वो जो है किसी लोकल लैंग्वेज में वो नाम होता है, चाहे जो है वो, क्योंकि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम रहें, प्रोडक्ट जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो किया जा सकता है. उसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप उसमें नाम नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि आपने जो है यू हैव टू मेक दिस प्रोडक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, और आप उस सेगमेंट को सर्विस करने के लिए ही अपने मुल्क से उस दूसरे मुल्क में आए होते हैं. तो अगर वो दूसरे लोग जो हैं उस नाम के साथ कनेक्ट ही नहीं कर सकते, तो फिर वो जो है वो क्यों आपकी प्रोडक्ट ख़रीदेंगे. जिस तरह जो है वो नोवा कार जो थी वो स्पेनिश में नहीं चल सकी, मगर स्पेन में या जो है मैक्सिको वगैरह में वो इतनी पॉपुलर ही नहीं हुई, जस्ट बिकॉज कि उसका मतलब जो स्पेनिश में था वो इतना अच्छा नहीं था कि लोग उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाहते. ठीक है. सो यहाँ पे भी उन्होंने देखिए कि जो है जैसे पाकिस्तान में मैग्नम और कार्टेड्योर जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस की है. बाकी जो है ये विनेटा एंड सोलेरो, कैलिपो और रानियरी जो है ये हमारे पास नहीं है, बिकॉज शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हमारे पास आ जाएं, लेकिन अभी जो है जो उनकी कंसंट्रेशन है वो इस पे ही है. जो सिंपल जो आइसक्रीम है वो वॉल्स के नाम से ही बेच रहे हैं, और बाकी जो है वो उन्होंने मैग्नम और कार्टेड्योर जो है वो उन्होंने उस तरीके से लेके आए. सो आप जो है जब आप ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं तो आप जो है ये देखें कि जो भी मार्केट आप लेके जा रहे हैं, जिसमें भी आप लेके जा रहे हैं, वहाँ पे जो है आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेंथ कैसे है, वो उसकी मार्केट की अट्रैक्टिवनेस कैसे है. क्योंकि अगर आपको ये दोनों चीज़ें मैच नहीं करती हुई मिलेंगी तो आप उसमें सरवाइव नहीं कर सकते, और जब आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे तो आप प्रॉफिट नहीं करेंगे. जब आपकी कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी तो फिर उस मार्केट में जाने का जो सबब था लोग पूछना शुरू कर देंगे आपसे, हर आपकी डिसीजन को क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे. तो आप उस क्वेश्चन से आप बचना चाहते हैं. ठीक है. सो इसको जो है थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है. अब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट एंट्री मोड डिसीजन, आपने जो है किस तरीके से मार्केट में एंट्री में एंटर करना है.
तो वो डिसीजन किस तरह लिया जाता है, तो कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं विच कम इन टू प्ले। सोशो कल्चरल डिस्टेंस, आपका और जिस मुल्क में आप जा रहे हैं उसमें सोशो कल्चरल डिस्टेंस कितना है। एक तरफ जो है अगर आप पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं और आप जो है यूरोप में अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो कल्चरल डिस्टेंस है, आप पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं यूरोपियन कंट्री में, तो आपका जो कल्चरल डिफरेंस है या कल्चरल डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। सो वो जो है वो एक नेगेटिव बन जाता है। ये देखिए हमने नेगेटिव डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो आपके लिए एक नेगेटिव होता है, क्योंकि जो है कल्चरली जो है प्रॉब्ली लोग आपको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हमारे यहाँ तो वैसे भी लोगों को आजकल मुसलमानों से, क्योंकि मीडिया में इतनी बातें होती हैं, मुसलमान ही टेररिस्ट हैं और तो कोई टेररिस्ट है नहीं, तो वो जो है एक जो है वो अपने आप को दूर रखना चाहते हैं इस सिलसिले से। फिर कंट्री रिस्क, डिमांड और अनसर्टेनिटी। अब जो है कंट्री रिस्क भी है कि कंट्री जो है वो अनस्टेबल हो सकता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उसकी ऐसी ना हो। अगर आपको याद हो तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में आप लोगों ने पेस्टल एनालिसिस जो है ना वो पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो वो पेस्टल एनालिसिस क्या था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है ना, लीगल, इस ये सारे जो एस्पेक्ट्स आपको, तो इस यहाँ पे भी कंट्री रिस्क जो है वो आ जाता है, ठीक है ना। डिमांड की अनसर्टेनिटी है कि फ्लक्चुएट ना कर जाए, डिमांड की भी अनसर्टेनिटी है कि डिमांड फ्लक्चुएट ना कर जाए, हो सकता है सीजनल हो सकता है वो किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से हो गई हो या कोई और अनफोर्सीन रीजंस की वजह से डिमांड क्रिएट, एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो गई हो, तो आप उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। तो जिस तरह अगर आप देखें तो वो प्री फैब्रिकेटेड होम्स जो हैं वो हमारे यहाँ एक डिमांड क्रिएट हो गई थी। अब वो डिमांड क्यों क्रिएट हुई थी? बिकॉज ऑफ दैट अर्थक्वेक दैट वी हैड अ फ्यू इयर्स अगो। अब जो है अगर आप किसी को कहेंगे यार वो ये अपना प्री फैब्रिकेटेड होम जो है ये अब आप ले लें, तो आप कहेंगे भाई आपका दिमाग ख़राब है, मैं अपना घर खुद क्यों ना बनवाऊं, मैं इस प्री फैब्रिकेटेड होम में क्यों रहूं, मुझ पे क्या आफत आई हुई है, ठीक है। सो वो भी एक नेगेटिव है। फिर जो मार्केट साइज और ग्रोथ है ना वो एक पॉजिटिव है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको वो अट्रैक्ट, वो मार्केट साइज ही तो कर रहा होता है कि यार इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसमें तो हमारी चीज़ बिकी जाएगी। जिस तरह आजकल जो है सारी दुनिया की जो कंसंट्रेशन है वो टुवर्ड्स इंडिया है, क्योंकि इतने वहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और जहाँ की जो मिडिल इनकम जो क्लास है वो ग्रो कर रही है, उनकी जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ रही है डे बाय डे। तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स जो हैं वो कोशिश में हैं कि वो इंडिया में एंटर करें, लेकिन उनकी जो लीगल इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा हैं, उन डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, वो हर एक को जो है नहीं आने देते मार्केट के अंदर। वो जो है अपनी लोकल इंडस्ट्री को जो है बूस्ट करते हैं या उसको पुश कर रहे होते हैं। तो वाई वुड दे वांट कि समबडी फ्रॉम आउटसाइड शुड कम एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स, और जो है उनकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो इज डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉफिट्स। तो इसलिए उनके यहाँ जो है वो हाई टैक्सेशन है ताकि लोग जो है दे शुड स्टे अवे फ्रॉम ब्रिंगिंग इन दीज इम्पोर्टेड आइटम्स या इम्पोर्टेड ब्रांड्स। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में जो है इम्पोर्टेड ब्रांड्स नहीं मिलते या आ नहीं रहे हैं या उनके बुटीक्स नहीं खुल रहे हैं या उनकी शॉप्स नहीं खुल रही हैं, नहीं, एवरीथिंग इज देयर। और जो है उन्होंने जो दूसरा काम ये किया है कि उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आपने ये लेके आना है, आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं। इंडस्ट्री लगाने का मतलब क्या है कि आप यहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी। फिर जो है वो आपको कहते हैं कि जी आपका यहाँ पे लोकल पार्टनर होना चाहिए।
आप खुद इंडिपेंडेंटली जो है वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। इसीलिए अगर आप देखें तो बहुत सारी जगह जो है वो लिखा, जैसे जो सुजुकी है, हर जगह दुनिया में वो सुजुकी के नाम से जानी जाती है, लेकिन इंडिया में वो मारुति सुजुकी के नाम से जानी जाती है। होंडा जो है वो हीरो होंडा है, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने जो है लोकल पार्टनर जो है जब लेके आए तो उन्होंने नाम उनको चेंज करना पड़ा, क्योंकि दोनों का नाम आता है। दिस इज हाउ दे ऑपरेट। तो वो लोकल जो है जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनको बूस्ट करने के लिए उन्होंने ये काम किया, और ये गवर्नमेंट की तरफ से है, विच इज़ गुड इन वन रिस्पेक्ट। क्या ज़रूरत है कि आप जो है बाहर से जितने ब्रांड्स आ रहे हैं आप उनको लेके आएँ, और वो क्या करें कि जी आएँ, आपको अपनी प्रोडक्ट बेचें, और उसके बाद सारे का सारा जो मुनाफा है लेके वापस अपने पेरेंट कंट्री में चले जाएं। इस तरह जो है जो भी वो कमाएंगे, जाहिर सी बात है इधर जो है लोगों को, अगर वो इंडस्ट्री लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाते हैं, तो लोकल लोगों को जो है तनख्वाहें देंगे, उनको बेनिफिट्स देंगे, ठीक है ना। तो उससे बेरोज़गारी ख़त्म होगी, स्किल्स भी आएंगी, और फिर एक वो जो है वो ग्लोबल ब्रांड जो है वो लोकल होके आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड बैरियर्स, ये जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड बैरियर्स ही हैं, ठीक है ना। और ये ट्रेड बैरियर्स जो हैं वो जो आप मैंने जैसे थोड़े लास्ट लेक्चर में बात की, वो नाफ्टा, गैट, सार्क, आसियान, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, इनकी छोटी छोटी जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं, ये जो है फिर ट्रेड बैरियर्स, यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, जस्ट टू प्रोटेक्ट द लोकल इन्वेस्टर, लोकल ट्रेडर, लोकल मैन्युफैक्चरर, ये सारे लोग जो हैं दे हैव कम एंड जॉइंट हैंड्स, उससे जो है इनको फायदा होता है। और जब ये और ये फिर जो है वो लोकली जितनी जो कम्युनिटी है उसमें जब ये प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली खुशहाली आती है। जो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन है, अगेन इट्स अ नेगेटिव, ठीक है ना। जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा उतना ही आपके लिए मार्केट में पेनिट्रेट करना मुश्किल होगा, until unless you have got a wonderful unique product जिसका जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन है वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि जो है कंपटीशन वुड हैव टू थिंक ट्वाइस इन हिटिंग यू। सो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स। फिर नंबर ऑफ एक्सपोर्ट इंटरमीडिएरीज, कि कितने लोग हैं जो कि बीच में इन्वॉल्व हैं इस एक्सपोर्ट को करने के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं, आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ता, वो आपके बिहाफ पे जो है आपकी प्रोडक्ट लेते हैं और जाके वो दूसरी कंट्री में या दूसरे रीजन में उसको मार्केट करना शुरू कर देते हैं, और उसको वो मार्केट भी करते हैं और बल्कि वो आपके एक सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। तो आपको यू डू नॉट नीड टू एक्सक्यूज मी, आपको जो है वहां पे कुछ भी रोल प्ले नहीं करना, विदाउट एनी एफर्ट बीइंग मेड फ्रॉम ऑन योर पार्ट, दीज इंटरमीडियरीज वुड डू एवरीथिंग ऑन योर बिहाफ, विच इज अ बिग प्लस, ठीक है। सो वो जो है आप ऐसी जो है मार्केट्स ढूंढ रहे होते हैं कि जहाँ पे ये इंटरमीडियरीज प्रेजेंट हो, जो कि आपका काम जो है वो आपके बिहाफ पे कर दें, आपको ना करना पड़े, क्योंकि फिर आपके तो पैसे लग नहीं रहे, आपको तो सिर्फ उनको ब्रांड या प्रोडक्ट जो है वो तैयार करके देनी है, बाकी काम उनका, वो आपके दरवाजे से वो सारी चीज़ें उठा के ले जाएंगे और एंड कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। वो सारा प्रोसेस कैसे होता है वो उनका हेडेक है, आपका नहीं है। अब जो है ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन, अब आप जो है इसको जरा स्टडी करके देखें। प्लस जो है वो क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग इंटरनलाइजेशन, नेगेटिव क्या है, डिक्रीजिंग इंटरनलाइजेशन।
which means increasing externalization. तो इंटरनल फैक्टर्स आपके पास क्या हैं? फर्म साइज, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। प्रोडक्ट में आपकी जो दो चीज़ें काउंट हो रही हैं वो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी है एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एडवांटेज है, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो आपको पता है, कॉम्प्लेक्सिटी में जो है वो टेक्निकल एडवांसमेंट्स जो हैं वो और पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स की बात आ जाती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी जो है ना लीगली प्रोटेक्टेड है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर आप जो है चाइना जैसे मुल्क में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है लोग फ़ौरन उसको कॉपी कर लेते हैं, तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और वो चीज़ बना लेते हैं फिर उसके बाद, अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती। फिर आपके पास डिज़ायर्ड मोड करेक्टरिस्टिक है कि जी रिस्क अवर्स, कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे आपको देखना है कि रिस्क को मिनिमाइज करना है, कंट्रोल ज़्यादा रखना है और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उसको भी मिनिमाइज करना है, क्योंकि आपको जो है अभी ब्रांड या अपनी प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करनी है, ठीक है ना, मार्केट में, दूसरी नई मार्केट में। तो अगर आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो कहीं आइडेंटिटी लूज ना कर जाए, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। फिर ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक क्या होता है कि जी टेसिट नेचर ऑफ नो हाउ, अपॉर्चुनिस्ट बिहेवियर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब आपको जो है कितनी नो हाउ है इस सारे प्रोसेस के बारे में, आप जो है अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सकते तो देन इट और इस सारी चीज़ को करने में क्या ट्रांजैक्शन आएगी, क्या आपको उसका पता है? क्योंकि यूजुअली जो है आप जब जा रहे होते हैं वहाँ पे आप ये देख रहे होते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है ना, और उसमें जो है उसको करने के लिए कितने पैसे लग जाएंगे। अगर वो आपके पास पैसे मौजूद हैं और आप जो है वो रिस्क ले सकते हैं और उसमें पेनिट्रेट कर सकते हैं, तो यू विल बी मोर देन हैप्पी टू जंप इनटू इट, गेट होल्ड ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी एंड मेक इट वर्क फॉर यू। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या है कि सोशियो कल्चरल डिस्टेंस बिटवीन होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री, हमने बात कर ली। कंट्री रिस्क, डिमांड, अनसर्टेनिटी, ये भी हमने बात की। मार्केट साइज एंड ग्रोथ, ये भी हम कर चुके हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रेड बैरियर्स, ओके। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन एंड स्मॉल नंबर ऑफ रेलिवेंट एक्सपोर्ट इंटरमीडियरीज अवेलेबल। अब जो है वो जो इंटरमीडियरीज हैं वो छोटे नंबर में होते हैं, ठीक है ना, या बड़े नंबर में भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं होते। तो क्योंकि हर एक की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है एक्सपोर्ट के हवाले से या इंपोर्ट के हवाले से। कुछ लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को देख रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो फर्नीचर को देख रहे होंगे, कुछ लोग जो है वो क्लोथिंग को देख रहे होंगे। हर आदमी जो है वो हर चीज़ नहीं कर रहा होता। उसकी वजह यह है कि उसकी वो एक्सपर्टीज़ नहीं होती, उसकी वो फील्ड ही नहीं होती, तो वो जो है वो क्यों हाथ डालेगा एक ऐसे वेंचर में जिसमें उसको नहीं पता कि आगे जो है उसको कितने लोग अप्रिशिएट करेंगे और कितने नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो इस बात को अगर आप गौर करें इस पे, तो ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी सिचुएशन में आ जाता है कि यार अच्छा ऐसा होगा तो फिर हम कैसे इसको करेंगे। तो लाइक हमारे लिए जो है क्या हुक्म है या हम इसको किस तरीके से लेके चलें, ठीक है। सो ये जो है ये आपको लेके जा रहे हैं। तो ये एंट्री मोड डिसीजन क्या है कि आपके एक्सपोर्ट मोड्स आपने देखे क्या हैं, और फिर इंटरमीडिएट मोड्स क्या हैं और हायरार्किकल मोड क्या है इंटरनेशनलाइजेशन के, ठीक है ना। तो जितने पॉजिटिव्स होंगे उतना ही आप जो है आप स्ट्रांग है विद इन योर ओन सेल्फ, ठीक है। और आपके लिए जो है इन पॉजिटिव्स को फिर मोल्ड करना और अपने एडवांटेज में यूज़ करना जो है वो बेहतर रहता। अब जो है लेट्स
टॉक अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन, क्योंकि अब आप ग्लोबल की बात कर रहे हैं, तो लेविट क्या कह रहा था कि बिकॉज द वर्ल्ड, टेड लेविट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में होते थे एंड ही वाज आल्सो द एडिटर ऑफ हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। अगर आप में से किसी ने वो मैगजीन देखा हो, काफ़ी उसके रीडरशिप है, लोग उससे जो है काफ़ी कुछ सीखते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो एकेडमिक्स के हैं वो उसमें लिखते हैं और वो उसकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो वो उसकी लेविट जो है वो कहता है कि जी बिकॉज द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग ड्यू टू लीप्स इन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड सो फोर्थ, वेल मैनेज कंपनीज शुड शिफ्ट देयर एम्फेसिस फ्रॉम customizing items to offering globally standardized products that are advanced, functional, reliable and low priced for all। अब अगर क्योंकि टेक्नोलॉजी भी जो है वो एडवांस हो गई है, कम्युनिकेशन जो है वो भी बहुत तेज़ हो गई है, ठीक है ना, तो कंपनी जो है वो अपने कस्टमाइजेशन को छोड़ दें और वो जो ग्लोबली एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को लेके आएँ, ठीक है ना, जो कि फंक्शनल हो, रिलायबल हो और कम कीमत पे हो, ताकि लोगों का फ़ायदा हो। आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल कर लिया और आपने जो है उसका बेनिफिट अगर कस्टमर को या कंज्यूमर को पास नहीं किया है, तो फिर जो है उसका आपका ग्लोबल होने का उसको क्या फ़ायदा हुआ अगर उसने जो है पैसे ज़्यादा देने हैं। आजकल जो है वो रीजन को जब हमने शुरू की थी ये डिस्कशन, तो वो रीजनल सेगमेंटेशन की बात हो रही थी। उस रीजनल सेगमेंटेशन को अगर आप देखें तो उन्होंने कोशिश ये की है कि अक्रॉस द बोर्ड जो रीजन में प्राइस है वो जो नई कंट्री जहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं वो उसी प्राइस में उधर दे दें, वो उसको कन्वर्ट करके देखें उसमें लोकल करेंसी में कि वो कितने की बनती है और उस प्राइस के साथ वो उसको मार्केट कर दें। तो यहाँ पे भी वो यही करना चाह रहे हैं। अब जो है आप देखें कि इसमें आपको जो है जो प्रोडक्ट है उसको चेंज नहीं करना, लेकिन उसकी जो मार्केटिंग से रिलेटेड जो मटेरियल है आप उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, उसको टेलर कर सकते हैं, ताकि जो लोकल्स जो हैं वो उसको समझ सकें और उसको उससे लुत्फानंदोज हो सके। आप देखिए वही शूज़ जो हैं अब नाइकी के अक्रॉस द वर्ल्ड मिलते हैं, वही यूनिफॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड मिलती हैं, ठीक है ना, वही पेप्सी है आपको जो अक्रॉस द वर्ल्ड मिलता है, वो सेम जो है पैकेजिंग में मिल रहा होता है, ठीक है ना। यही कोक का हाल है। अब जो है अगर आप जो नई कोक की कैंपेन है जिसमें जो है वो फादर, मदर, अब्बू, अम्मी, बाबा, ठीक है ना, बुआ, ये लिखा हुआ आपको अगर मिल रहा है तो दैट मीन्स कि उन्होंने जो है कोक तो वही है लेकिन उसका लेबल जो है वो लोकली कस्टमाइज कर दिया है। फैसल, उमैर, शीरी, सदफ, अरूज, ये इस किस्म के नाम जो हैं ये कहीं और आपको मिल रहे हैं नहीं, ये आपको पाकिस्तान में ही मिल रहे हैं। तो उन्होंने यही नाम जो है उसके ऊपर लेबल्स के ऊपर प्रिंट कर दिए है ना। और जो है उन्होंने कहा कि जी आप अपनी नाम की बोतल जो है वो ढूंढें, जिस तरह वो एक ज़माने में वो एक बबल गम आया करती थी, बबल योर नेम, क्या वो पैकेट खोलते थे और देखते थे कि आपके नाम की जो है वो बबल गम है कि नहीं है, तो आपकी लक होती थी कि आपके नाम की बबल गम जो है वो उसमें से निकल आए। इसी तरह जो है अब वही कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने कोका कोला ने अपना लिए, तो उन्होंने कस्टमाइज कर दिया, स्टैंडर्ड वही है, प्रोडक्ट नहीं चेंज की, लेकिन उसको कस्टमाइज कर दिया फॉर द लोकल मार्केट, ताकि लोग जो हैं उससे लुत्फानंदोज हो सके। इसी तरह प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी हमें ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी प्रोडक्ट को चेंज करें, हाँ पैकेजिंग थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ती है फॉर द लोकल, तो वो कर लेते हैं, हम स्टैंडर्ड क्यों बदलें, स्टैंडर्ड बदलने की ज़रूरत नहीं है, मगर स्टैंडर्ड वही रहने थे जो ग्लोबली ऑल अक्रॉस चल रहा है, ठीक है ना। तो जितनी ये बड़ी बड़ी फर्म्स हैं अब जो है वो क्या करती हैं, वो यही सोचती हैं कि यार हमने जो है क्योंकि इस मार्केट में ऑपरेट करना है तो इस मार्केट के डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करें और अपनी प्रोडक्ट को कस्टमाइज करें इस लोकल के साथ। अब वो थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल वाला जो केस है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। एक्ट लोकल में ऐसे नहीं है कि वो जो आपका दिल करे आप कर लें,
आप अपने हेड ऑफिस से, जो भी जहाँ पे भी है वो, आप उससे वो चीज़ जो है वो करवा लें, वेट करवा लें कि हाँ जो आप करने लगे वो ठीक है, उसके बाद फिर आप उसे वो कर लें। लेकिन यूजुअली जो है अगर वो थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल वाली केस हो जाता है ना, तो उसके अंदर जो है जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि वो जो आपका जो ब्रांड है वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ करने लग जाता है, अपनी इक्विटी लूज़ करने लग जाता है, और फिर जो है वो लोग जो है उसमें से आहिस्ता आहिस्ता लॉयल्टी जो होती है, ब्रांड लॉयल्टी, वो ख़त्म होने लग जाती है। ठीक है, तो ब्लेंडिंग ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स विद लोकल और रीजनल कंसर्न्स, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, जो मैं आपको बात कर रहा था। अ ग्लोबल ब्रांड हैज अ क्लियर कंसिस्टेंट इक्विटी अक्रॉस ज्योग्राफीज, सेम पोजीशनिंग, सेम बेनिफिट्स, प्लस लोकल टेलरिंग इफ नीडेड। तो आपकी जो पोजीशनिंग है, आपके जो बेनिफिट्स हैं, वो चेंज नहीं होने चाहिए उस ब्रांड के, ठीक है ना। हाँ, जो थोड़ी बहुत जो लोकल टेलरिंग है वो आप कर सकते हैं, ताकि जो है लोगों के लिए इट शुड बी मोर मीनिंगफुल। तो अगर प्रोडक्ट इज नॉट मीनिंगफुल फॉर योर लोकल कंजम्पशन, तो फिर आपका जो कंपटीशन है विल ओवरटेक एंड यू विल लूज ग्राउंड। तो क्या होगा, एंड ऑफ द डे यू वुड हैव टू क्लोज योर ऑपरेशंस। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड डू समथिंग अबाउट इट। अब ग्लोबल ब्रांड स्ट्रैटेजी में क्या कह रहा है कि to build brand equity, it is often necessary to create different marketing programs to address different marketings or market segments। ठीक है जी, हमने segments की बात पहले भी की, अब हम दोबारा करने लगे। तो कहते हैं identify differences in consumer behavior, how they purchase and use product, what they know and feel about brands। जी, दो बातें बहुत important। पहली बात ये कि जो कंज्यूमर है आपका, वो इस ब्रांड को कैसे उसके वो परचेज किन हालात में कर रहा है और उसको यूज़ किस तरह करता है। दूसरा ये कि उसको इन ब्रांड्स के बारे में क्या पता है और उसकी क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर समझ में आ जाए कि वो जो है किन हालात में वो ख़रीदी जाती है और किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, तो वो जो है आपको बहुत कुछ बता सकता है उस आदमी के बारे में और उसके लाइफस्टाइल के बारे में, ठीक है ना। और उसके कि वो जो है ब्रांड के बारे में क्या जानता है और उसके बारे में क्या उसकी फीलिंग्स क्या हैं। अगर आपको वो पता चल जाए तो आप उस फीलिंग्स को, अगर पॉजिटिव हैं तो उसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर नेगेटिव हैं तो उनको पॉजिटिव में टर्न करने की कोशिश करेंगे। और अगर उसका इमेज जो है उसके जहन में इतना अच्छा नहीं है तो फिर जो है उस इमेज को चेंज करना ज़रूरी हो जाता है, और वही जो है आपकी सक्सेस होगी अगर आप वो इमेज चेंज कर लेते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर, ठीक है। फिर जब आपको ये पता चल जाए तो आप एडजस्ट करें अपने मार्केटिंग प्रोग्राम को या ब्रांडिंग प्रोग्राम को, और उसमें जो है आप देखें कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि उसके लाइफस्टाइल के साथ मैच करते हैं, ताकि वो उसको जो है उन एलिमेंट्स को देख के एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो इनिशिएट करे उसमें, ठीक है ना। वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो उसको मोटिवेट करे। फिर नेचर ऑफ सपोर्टिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स, उसके हवाले से फिर आप जब वो एलिमेंट्स को चूज कर लेंगे तो आप अपने जो है मार्केटिंग प्रोग्राम को वहाँ पे टेलर करेंगे, और आप सेकेंडरी एसोसिएशंस की बात करेंगे। उसमें हो सकता है आपको जो है वहाँ लोकल सेलिब्रिटीज़ डालने पड़े, हो सकता है आपको जो है लोकल एड शूट करना पड़े, ठीक है ना, विद लोकल एक्टर्स। आपको हो सकता है कि वो इंटरनेशनल ऐड हो, उसको डब करना पड़े अपने लोकल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है ना। जैसे पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, ये वो कंट्रीज हैं जिनकी अपनी जो है खूबसूरत ज़बानें हैं। तो एंड पीपल डू नॉट नो मच इंग्लिश, उनको इंग्लिश जो है ज़्यादा नहीं आती है। हमारे मुल्क में भी बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हम फिर भी ट्राई करते हैं, बिकॉज हम जो है ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके हैं, इसलिए हम समझते हैं कि नहीं यार हमें इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन जो ये कंट्रीज़ हैं, पोलैंड हो गई, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, ये नहीं समझते कि ये इट इज़ नेसेसरी कि वो जो है अपने जो है इंग्लिश को सीखें। तो वो जो है उस वहाँ पे आप जितने भी एड्स अगर आप देखें जो आ रहे हैं, तो वो यूरोपियन एड्स हैं, लेकिन उन्होंने
एक उनकी ज़बान में डब किया हुआ, वो जो है ना वॉइस ओवर जो है वो उनकी ज़बान में उन्होंने दे दिया, तो लोगों को वो समझ में आ जाता है कि जो है वो मैसेज क्या है, और क्योंकि उनकी लैंग्वेज में होता है तो इट्स मच ईजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड। फिर आपने ये देखना है कि जो मेंटल मैप हमने जो एक शुरू के लेक्चर्स में बात की थी, वो मेंटल मैप अगर बनाए किसी कंज्यूमर से, तो वो जो है वो मेंटल मैप जो है वो कितना रेलेवेंट है उसका, ठीक है ना, उसको जो है उसमें उसकी वैलिडिटी क्या है, उससे उसके लेवल ऑफ अवेयरनेस को आपको पता चलेगा, और उसकी जो एसोसिएशंस हैं वो आपको बताएंगी कि वो ब्रांड जो है वो कितना वैल्यूएबल है उसके लिए। अब ये देखें ना, जैसे हमने बात की थी, मैंने अर्ली जो बात की थी लेक्चर्स, मेरे ख्याल में 2 लेक्चर्स पहले की बात है यार, वो जो चेन 1 की मैं बात कर रहा था, तो वो चेन 1 जो है, अब अगर हम उसका मेंटल मैप वहाँ पे लोगों से ड्रॉ करवाएं, तो कितने लोग जो हैं वो एक अच्छा मेंटल मैप बना सकते हैं जो कि रेलेवेंट हो या वैल्यूएबल हो, उसमें एसोसिएशन। बहुत कम लोग जो हैं वो आपको ऐसे मिलेंगे। वेयर एज जो है यहाँ पे आप जाएं किसी भी मार्केट में खड़े हो, अगले से कहेंगे यार ज़रा चेन 1 के लिए जो बताओ कि तुम्हें अगर मैं बोलूँगी चेन 1, तो क्या क्या अल्फाज जो हैं तुम्हारे दिमाग में आते हैं उससे एसोसिएट होते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिकॉल है या रिकग्निशन है वो ज़्यादा होगी बनिस्बत उस जगह के जहाँ पे अबू धाबी में या यूएई में जहाँ की मैं बात कर रहा था। सो अब जो है ये जब आप अवेयरनेस की बात हो जाती है या एसोसिएशन जो है वो आप डिटर्मिन कर लेते हैं, फिर आप देखते हैं कि आपने उसमें क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है ना। अगर वो चेंजेस जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं या सिग्निफिकेंट हैं, तो आपको वो चेंजेस करने हैं, और वो किस तरीके से करने हैं। तो आपका जो मार्केटिंग प्रोग्राम है वो किस तरह टेलर होगा ताकि जो है वो आपको एक ऑप्टिमम जो है ना वैल्यू दे सके। नहीं तो लोग जो हैं भूल जाएंगे आपके ब्रांड को, और जिस दिन वो भूल गए उस दिन जो है आपका जो ब्रांड है वो ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा अपने आप को उस हवाले से टेलर करने की ज़रूरत है। आपको देखने की ज़रूरत है कि ये जो है कितना रेलेवेंट रहेगा ये सारा कुछ, ताकि जो है ब्रांड की जो इमेज है वो टार्निश ना हो, ब्रांड का जो सेलियंस है वो ख़त्म ना हो जाए, ब्रांड की जो रेलेवेंस है वो ख़त्म ना हो जाए। ब्रांड जो है वो अपनी सारी ब्रांड एलिमेंट्स के साथ ज़िंदा हंसता खेलता जो है वो नज़र आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके अगेंस्ट काम कर रहे होंगे, जो कि उसके कंपटीशन के साथ लॉयल होंगे, तो दे वुड वांट कि जो ब्रांड है दूसरा वो ख़त्म हो जाए किसी ना किसी तरीके से। सो यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल इन दैट रिस्पेक्ट। एंड जो भी आप मार्केटिंग प्रोग्राम बनाएंगे उस मार्केटिंग प्रोग्राम को आपको देखना है कि वो किस तरीके से बेनिफिशियल होगा सबके लिए। अब फिर बैक टू वही बेसिक्स कि टू बिल्ड कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी, मार्केटर्स मस्ट एस्टैब्लिश ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ब्रांड अवेयरनेस, create points of parity and points of difference, elicit positive accessible brand responses, forge intense active brand relationship, ठीक है। Achieving these 4 steps in turn requires establishing 6 core brand building blocks. अब पहले हम कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी की बात कर रहे थे, ठीक है, और अब हम जो है वो ग्लोबल कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी की बात कर रहे हैं। अब हम फिर वही ब्रेथ एंड डेप्थ की बात कर रहे हैं, हम उसी रिकग्निशन एंड रिकॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम उसी इमेज और जजमेंट की बात कर रहे हैं, हम उसी फीलिंग की बात कर रहे हैं, हम उसी रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। हमारे लिए जो है हो सकता है कि जो ब्रांड पाकिस्तान में जो है बहुत
हाई वैल्यू रखता हो, लोगों के दिलों पे राज करता हो, ठीक है ना। जो जैसे कि हीरो होंडा का जो जैसे उनका स्लोगन है वो कहता है देश की धड़कन, धक धक देश की धड़कन, है ना जी। तो वो जो है धक धक जो है वो ब्रांड धक धक करता हो लोगों के दिलों में। अमूमन वैसे जो है वो जो देखा ही गया है कि जो मॉडल्स होते हैं ना जो इन एड्स में इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली वो धक धक ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। कभी उनकी जाके फेसबुक पे उनके पेजेस को विज़िट करें, आप देखें तो सही कितनी लाइक्स होती हैं उस पर, और बहुत कम नेगेटिव जो है ना कमेंट्स आपको मिल रहे होते हैं। हम उसी ब्रेथ और डेप्थ की बात कर रहे हैं, और ब्रेथ और डेप्थ में वही रिकग्निशन है, वही रिकॉल है, वो जजमेंट है, फीलिंग्स हैं, इमेजेस हैं, ठीक है ना, रेजोनेंस है, परफॉर्मेंस है। क्योंकि जो कंट्री ऑफ ओरिजिन होती है वहाँ पे तो लोगों को पता होता है ऑलरेडी कि वो ब्रांड जो है वो क्या है, ठीक है ना। वो एक ख़ास लेवल पे पहुँचा होता है तो तब वो जो है उसने सोचा होता है कि अब मैंने जो है नेक्स्ट लेवल ये है कि मैंने इंटरनेशनल होना है। कुछ ब्रांड्स जो हैं वो जल्दी जो है मैच्योरिटी लेवल ले लेते हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन में, और कुछ जो है वो देर से लेते हैं, और इसीलिए फिर उनकी जो ट्रांजिशन है टू बीइंग ग्लोबल वो ज़रा लेट हो जाती है। लेकिन आप यहाँ पे ये मत भूलें कि ऑब्वियसली आपने जो स्टडी की है, आपने जो मार्केट सेगमेंट को टारगेट किया है, वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बन जाएगा ब्रांड का अगर जो है ब्रांड वहाँ पे लॉन्च हो जाता है। तो आपके अगर वो जो है ना ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें हैं, तो रिकग्निशन और रिकॉल जो है वो दोबारा से आपको इंस्टिल करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। हाँ, एक टोटली नई मार्केट में अगर आप जा रहे हैं जहाँ पे नई आपका ब्रांड की प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं है, लोग उसको नहीं पहचानते, वहाँ पे आपके जो है ना मार्केटिंग प्रोग्राम्स देन दे वुड कम इन टू प्ले, और आप जो है अपनी कोर जो आपकी खसूसियात हैं एंड यू नो योर पॉइंट्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन, आप उसको जो है हाईलाइट करेंगे, या जो आपकी जो इक्विटी के जो पॉइंट्स हैं आप उनको हाईलाइट करेंगे, ताकि जो है लोगों के दिल जो है वो और दिमाग में आपका जो ब्रांड है वो रच बस जाए, ठीक है। आपको फिर वही पॉइंट्स ऑफ पैरिटी और पॉइंट्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन जो है वो क्रिएट करने होंगे। हो सकता है कि पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस जो हैं जो आपके कंट्री ए में चल रहे थे वो पॉइंट ऑफ बी में रद्द हो जाए, वहाँ पे लोगों के लिए वो इररेलेवेंट हो, तो यू नीड टू क्रिएट न्यू पॉइंट्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन विद द ब्रांड एंड विद योर कस्टमर्स। तो वो जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अब जैसे जो है हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ आ रही हैं या जो बन रही गाड़ियाँ जो है मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उसमें इतना इलेक्ट्रॉनिक्स का अमल दखल नहीं है, ठीक है। हमें अभी भी हम बेसिक गाड़ी चाहिए जो कि हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके चला जाए, ठीक है ना, चली जाए सॉरी। तो लेकिन अगर आप देखें तो डेवलप्ड वर्ल्ड में वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो आजकल जो हमारे पास गाड़ियाँ उनसे ऐसे लगता है जैसे 50 साल आगे चली गई हैं, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट सेंसर्स दिए हुए हैं, उनके अंदर जो हैं वो कैमरास लगे हुए हैं, उनके अंदर एयर बैग्स हैं, ठीक है ना, उनके अंदर नए किस्म की जो है एंटी स्किड ब्रेक्स लगी हुई हैं ताकि जो है गाड़ी स्लिप ना करे। तो सेफ्टी पे जो है वो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आपके लिए जो है गाड़ी जो है वो एक प्लेजर होना चाहिए, ना कि जो है कम्बरसम एक जो है ना काम होना चाहिए गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि जो है ट्रैफिक कंजेशन जो है वो ज़्यादा होने लग गई है। तो लिहाजा उस ट्रैफिक कंजेशन की वजह से आप ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी जो है वो इतनी कंफर्टेबल हो कि आप जब दूसरी जगह पहुँचें तो आप फटीग ना हो, आपको आप थक ना चुके हों, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम जो है वो नहीं देखते कि बाकी जो है उसमें क्या कंफर्ट जो है अवेलेबल है और क्या कंफर्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना।
और हमें जो है वो पॉजिटिव ब्रांड रिस्पॉन्स जो है वो हमें चाहिए। हमें एक पॉजिटिव इमेज चाहिए, हमें एक पॉजिटिव जो है ना जजमेंट चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, इमेज चाहिए, तो एक रेजोनेंस चाहिए। हमें जो है हर तरीके से कोशिश ये करनी है कि जब ब्रांड को कस्टमर याद करे तो इन अ पॉजिटिव मैनर करे, उसके पास अच्छी बात हो हमेशा कहने के लिए, बुरी बात ना हो। उसकी मिसाल इस तरह ही है कि अब बंदा जो है, अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो है डॉक्टर आपके लिए टाइम निकालता है, आपको बैठ के देखता है, आपसे बात करता है, आपकी पूरी बात सुनता है, आपको फिर वो समझाता है कि क्या ट्रीटमेंट होगी और उससे जो है उसमें कितना टाइम लगेगा और आप जो है आपको क्या क्या तकलीफ़ें और हो सकती हैं इस बीमारी से रिलेटेड। वेयर अगर वही जो है मरीज़ अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला जाता है, पहले तो ये कि वो वहाँ पे गंदगी देख के ही उसका दिल और ख़राब होने लग जाता है। फिर ऊपर से क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, डॉक्टर इतना टाइम नहीं देता कि वो बैठ के जो है आपकी पूरी कहानी सुने। वो जो है वो चाहता है कि जल्दी जल्दी जो है वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे, आप जाएं और दूसरे मरीज़ को देखें, क्योंकि पीछे जो है लाइन बहुत लंबी लगी हुई। तो आपके पास जो है यू वुड नेवर हैव अ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फॉर दिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए यू विल बी यार कि ये बहुत अच्छा था, उसका वेटिंग एरिया बहुत अच्छा था, लाइट बड़ी अच्छी थी, लोग साफ सुथरे थे, ठीक है ना, वहाँ पे गंदगी नज़र नहीं आ रही थी, स्टफ लाइक दैट। तो आप जो है एक एक चीज़ आप नोट करने लग जाते हैं और ये आप उसी वक्त उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं जब आपने जो है कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल देखा हुआ हो, ठीक है। फिर आपको ज़रूरत है कि आप एक्टिव ब्रांड रिलेशनशिप जो है वो फोर्ज करें, बनाएं। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपको जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि लोगों के पास जो है कोई पॉजिटिव चीज़ ही नहीं होगी आपके बारे में बात करने को, ठीक है ना। लोग जो हैं वो कहेंगे ओके दिस इज जस्ट अनदर ब्रांड। और जो है अगर आप देखें तो वो जो इंटेंस एक्टिव ब्रांड रिलेशनशिप है वो जिस तरह वेव्स, नाम ही काफ़ी है। डॉलन्स लिया तो बात बनी, लेकिन डॉलन्स जो है वो रेफ्रिजरेटर्स में दे आर नंबर 1, वेव्स जो है वो डीप फ्रीजर्स में नंबर 1, ठीक है ना। पेल जो है वो दे आर नंबर 1 इन एसीज। हालांकि तीनों जो हैं वो गैजेट्स वही बना रहे हैं ठंडा करने के लिए, लेकिन एक फ्रीज़र में जो है एक्सेल कर गया है, हालांकि उसकी और जो है ना फ्रिज की जो टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। और फिर वो और डॉलन्स जो है, और डॉलन्स ने जो है वो रेफ्रिजरेटर पे कंसंट्रेट किया और वो मार्केट को कैप्चर कर गया, और पेल जो है वो एसी को कर गया। तो और फिर उनके स्लोगन्स ऐसे हैं कि दे आर मोर मीनिंगफुल टू द कस्टमर्स एंड पीपल एंजॉय लिसनिंग टू देयर जिंगल्स एंड वॉचिंग देयर एड्स, ठीक है ना। तो वो जो है आपके लिए बहुत मीनिंगफुल हो जाता है कि जो है ये ब्रांड क्या कह रहा है। आप कह रहे हैं कि इन 4 स्टेप्स को अचीव करने के लिए आपको जो ब्रांड की 6 कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपको उन पे कंसंट्रेट करना होता, ठीक है। और कोर जो है वो क्या थे? सेलियंस, परफॉर्मेंस, इमेज, जजमेंट, फीलिंग एंड रेजोनेंस। अगर आपको याद हो वो पिरामिड हमने बनाया था, तो salience was down there, then you had performance and image, then you had judgment and feeling, and at the top was resonance, ठीक है ना। कि who are you, what do you want, what about you and me, इस किस्म की जो है क्वेश्चंस थे ना उसके अंदर हमने देखे। तो वो जो है वो जो CBBE मॉडल है आपको वो दोबारा से उस मार्केट के लिए डेवलप करना पड़ जाता है। जिस नई मार्केट में आप जाएंगे वहाँ पे आपको ये CBBE मॉडल जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। उसमें कुछ जो है मार्केट्स ऑलरेडी मैच्योर होती हैं, ठीक है ना,
कुछ जो है होती हैं वो अभी नई मार्केट्स होती हैं, कुछ जो होते हैं नीशेज होते हैं, उनकी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। तो हर एक के लिए आपको उसको नए सिरे से डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे टारगेट मार्केट क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, और उसके बाद जो है जब आप वो डिफाइन कर लेंगे तो फिर आप उनको बेहतर तरीके से सर्विस कर सकते हैं। और कोर वैल्यूज अगर आप उनकी चेंज नहीं करेंगे ब्रांड की, वो इतनी पुरानी जो कोर वैल्यूज हैं जिसकी वजह से वो ब्रांड एग्जिस्ट करता है, उसको लेके आगे चलें तो उसमें एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लोगों को समझ में आती है कि यार हाँ ये ब्रांड वाकई ही हमारी भलाई चाह रहा था। इट इज़ नॉट जस्ट अ रिफ रैफ फ्रॉम एनी प्लेस। तो अब जो है दीज आर द क्वेश्चंस फॉर ग्लोबल ब्रांडिंग पोजीशनिंग। ठीक है, जब आपने वो CBB कर लिया, अब आप ये बताएं कि हाउ वैलिड इज द मेंटल मैप ऑफ द इन द न्यू मार्केट, हाउ अप्रोप्रिएट इज द पोजीशनिंग, व्हाट इज द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ अवेयरनेस, हाउ वैल्यूएबल आर द कोर ब्रांड एसोसिएशन पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। तो आप जो है अब अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको ये सारे जवाब आने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द ब्रांड दैट यू आर टेकिंग टू दैट मार्केट, कि आपका जो मेंटल मैप है नए मार्केट में किस तरह फिट हो रहा है, पोजीशनिंग जो आपने की भी है वो कैसे होगी, ठीक है ना, लेवल ऑफ अवेयरनेस क्या है आपके ब्रांड के बारे में, जो कोर ब्रांड एसोसिएशंस हैं, पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन वो कितने वैल्यूएबल हैं, ठीक है ना, आपको पोजीशनिंग में क्या चेंजेस करने हैं अगर करने हैं तो, ठीक है, आपको कोई नई एसोसिएशन बनानी है तो वो क्या हो सकती है, ठीक है, आपने जो है जो नई जो भी एसोसिएशन जो एग्जिस्टिंग है क्या उनसे काम नहीं चल सकता, और आपको जो है किस तरह मॉडिफाई करना है उन एसोसिएशंस को। अब जिस तरह गो के हम बहुत सारे जो हम मीडिया की वजह से हमारे यहाँ इतनी एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है कि जो ब्रांड एम्बेसडर्स इंडिया में यूज़ होते हैं वो हमारे लिए भी दे वर्क आउट। अगर आप क्यू मोबाइल के एड्स उठा के देख लें तो स्वाय हमारे एक दो एक्टर्स के, बाकी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, इंडियंस हैं सारे के सारे, और वो क्यू मोबाइल को इंडोर्स कर रहे हैं। तो हमारी जो एसोसिएशन है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये हो गया कि इट्स नॉट जस्ट अ पाकिस्तानी ब्रांड, इट्स बिकमिंग अ रीजनल ब्रांड बिकॉज इट्स चीप। हालांकि वो क्यू मोबाइल जो है अभी इंडिया में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन अगर वो जो है रिलीज हो जाए तो वो जितने जो इंडियन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जो हैं क्यू मोबाइल को इंडोर्स कर रहे हैं उनको उससे चेंज नहीं करना पड़ेगा उस एड्स को, वो उन्हीं एड्स को लेके जो है वहां पे दिखा देंगे, and people would start following Q Mobile that way. So Q Mobile has played very smartly in that respect कि उन्होंने प्रोडक्ट पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ब्रांड है, लेकिन उसमें जो है इंडोर्समेंट्स जो हैं वो सारे अक्रॉस द बॉर्डर इंडियन उन्होंने किए। तो प्रोबेबली वंस दे गेट Q Mobile gets a license to open up its business in India, तो उनको मार्केटिंग जो प्रोग्राम्स हैं उसमें नहीं करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, इतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वो जो लास्ट लाइन है पाकिस्तान नंबर 1 सेलिंग ब्रांड, वो जो है वो चेंज कर देंगे, लास्ट लाइन जो है वो डब हो जाएगी, उसके ऊपर जो है दोबारा से आके वो जो भी ब्रांड एम्बेसडर है वो अपनी आवाज़ में कह देगा, तो देयर वुड बी नो डिफरेंस, वही एड्स जो है वो वहाँ पे जो है काम आ जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी मच नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो है जो एग्जिस्टिंग एसोसिएशन है या एग्जिस्टिंग पोजीशनिंग है इसमें हम कितना अमल दखल होना चाहिए, उसको कितना चेंज होने की ज़रूरत है। फिर क्या हमें जो है नया मेंटल मैप बनाने की ज़रूरत है, क्या हम जो है वही मार्केटिंग एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो उसमें क्या चेंजेस हमें करनी चाहिए, और क्या ये नई मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़रूरी हैं, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो यूजुअली ऐसा होता है कि वो नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने आपसे जो है पिछले लेक्चर में पेप्सी की बात की थी,
तो पेप्सी जो है वो जर्मनी में जब गया तो उनका ख्याल था कि ऑलरेडी हमारी जो है ब्रांड एक एसोसिएशन है, यहाँ पे लोग जो है पेप्सी को जानते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इतना इन्वेस्ट करें जो है इसकी पोजीशनिंग के लिए। और वो जो है जब उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया तो पता चला कि वो लिटरली जो है अपनी मार्केट जो है वो खो चुके थे और वो they were about to be thrown out of the market, so they came back और अब जो है they are a force to reckon with in German market. There are so many Pepsi drinkers over there. इतने अपना वहाँ नहीं है इंग्लैंड में जितने वहाँ पे हैं जर्मनी में। अब in designing and implementing marketing program to create a strong global brand, marketers want to realize the advantages of global marketing program while suffering as few of its disadvantages as possible. अब जो है जब भी आप मार्केटिंग जो प्रोग्राम को आप डिज़ाइन करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कंसंट्रेशन एडवांटेजेस की तरफ होती है, आप जो है डिसएडवांटेजेस को इग्नोर करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करें तो आप जो है आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि फिर जो है एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आपके दिमाग में आ जाता है, एक डिप्रेसिव स्टेट आ जाती है और आपके लिए कोई चीज़ भी जो है वर्कआउट नहीं करती। इवन जो पॉजिटिव है वो भी आपको नेगेटिव लगने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज के वो जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ओवर पावर कर लेते हैं आपकी थिंकिंग के कैपेसिटी को या एबिलिटी को। अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो कहाँ नहीं आते यार, अप्स एंड डाउन्स हर जगह आते हैं, ठीक है ना। वो जो है एक आम आदमी की ज़िंदगी में भी आते हैं, इसी तरह जो है वो ब्रांड्स के लिए भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी कोई ब्रांड ऊपर चला जाता है, कभी कोई ब्रांड ऊपर चला जाता है, लेकिन ब्रांड वही टॉप पे रहता है जो अपने जो कोर वैल्यूज़ है उनसे हटता नहीं है और वो बिलीव करता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है और जो है वो अपने ऊपर चेक रखता है। ऐसे नहीं है कि जो है किसी ने आपको खुला छोड़ दिया, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वो जो है कॉन्स्टेंटली जो है वो अपने आप को अपडेट कर रहा होता है, वो कॉन्स्टेंटली जो है वो देख रहा होता है कि हाँ जी मेरा जो ब्रांड है वो किस तरीके से मार्केट में रिएक्ट कर रहा है, लोग जो हैं उससे कितने खुश हैं, कितने ना खुश हैं, और जो ना खुश हैं उनको खुश करने में कितना टाइम लगेगा। जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ हमारे माशरे में वो ये है कि हमें चीज़ें समझ तो आ जाती हैं लेकिन हम उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं। जो अगर लोग नाखुश हैं तो हम उनको खुश करने के लिए राजी नहीं हैं। वाई आई डोंट नो। तो आपको जो है एडवांटेजेस को देखना है, अपने CBBE मॉडल को जो है उसको उसके जितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको लेके आना है, उनको हाईलाइट करना है ताकि जो है लोग आपके ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब दीज आर द 10 कमांडमेंट्स। जिस तरह हमने 10 C's की बात की थी, यहाँ पे 10 कमांडमेंट्स आ गई हैं, ठीक है जी। वो ग्लोबल ब्रांडिंग में 10 कमांडमेंट्स क्या कहती हैं? पहली कह रही है कि अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन ग्लोबल ब्रांडिंग लैंडस्केप। फिर डोंट टेक शॉर्टकट्स इन ब्रांड बिल्डिंग। देन एस्टैब्लिश मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। 4 embrace integrated marketing communications. 5 cultivate brand partnerships. 6 balance standardization and customization. 7 balance global and local control. 8 define operable guidelines. 9 implement a global brand equity measurement system. And 10 leverage brand elements. अब जो है जहां आप हैं और जिस नई मार्केट में आप जा रहे हैं वहाँ की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड कीजिए, अपनी मार्केट के साथ कंपेयर कीजिए, बहुत ज़रूरी है ताकि आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि आपका जो मार्केट, आपका जो ब्रांड है वो उस मार्केट में जाकर किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि हमारे यहाँ जो सफ़ेद रंग है वो सादगी शो करता है, ठीक है ना। वो कफन के लिए इस्तेमाल होता है, कफन का कपड़ा हमारे यहाँ सफ़ेद होता है। वेयर एज जो यूरोपियन साइड है वहाँ पे सफ़ेद रंग के कपड़े जो हैं वो दुल्हन पहनती है,
हमारे यहाँ दुल्हन जो है वो लाल रंग के कपड़े पहनती है। तो यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस जो है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर इफ़ यू आर इनटू टेक्सटाइल्स तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाना चाहिए कि यार ये जो है मैं एज जो है ना ब्राइड्स क्लोथ्स नहीं बेच सकता, कि वहाँ पे तो सफ़ेद रंग का कपड़ा चाहिए उनको, उस पर फूल बने हों, उस पर डिज़ाइन बना हो, जो कुछ भी हो, लेकिन सफ़ेद होना चाहिए। ठीक है। फिर शॉर्टकट नहीं आप ले सकते। आपको अगर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में जो है पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आपको करने हैं, उसके बगैर जो है नहीं होगा, क्योंकि लोग जो हैं वो आपको भूल जाएंगे, वो रिकग्निशन लेवल ही नहीं रहेगा, वो रिकॉल का लेवल ही नहीं रहेगा। ठीक है। फिर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ता है, आपको जो है लोगों को ग्रूम करना पड़ता है, ताकि जो है वो जो आपने बात की है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी वही बात करें या ब्रांड को उसी तरीके से बता सकें जिस तरह आप बता सकते हैं, उनकी एक एसोसिएशन हो। तो आपको जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है। फिर यू शुड टेक ऑल द मार्केटिंग कम्युनिकेशन मीन्स एज वन, सबको जो है आप इन्वॉल्व करें। ये नहीं है कि इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, नहीं, आप क्योंकि एक नई जगह पे जा रहे हैं तो इम्पैक्ट जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, लोगों को पता चले कि हाँ यार ये ब्रांड वाकई इट मीन्स बिजनेस, ऐसे नहीं आया गया। ठीक है। फिर आपकी पार्टनरशिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर वो पार्टनरशिप्स नहीं होंगी, आपका जो होलसेलर है, रिटेलर है, जो स्टॉकिस्ट है, दे शुड ऑल बी टॉकिंग ऑन द सेम टर्म्स। मतलब उनके साथ आपकी ऐसी रिलेशनशिप हो कि वो खुद कहें, आपकी प्रोडक्ट को पुश करें मार्केट के अंदर। ठीक है। फिर आप जो है स्टैंडर्डाइजेशन और कस्टमाइजेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हर जगह जो है आप ये ना करें कि वही चीज़ जो आपने अमेरिका में दी है वही आप जो है जर्मनी में दे दें, वही आप ऑस्ट्रेलिया में दे दें, वही पाकिस्तान में दे दें। लोकल कल्चर्स के हिसाब से उसको थोड़ा सा टेलर कर लें, थोड़ा कस्टमाइज़ कर लें, ताकि लोगों के लिए उसको समझने में और इस्तेमाल करने में आसानी हो। इसीलिए अगर आप देखें तो बहुत सारी जगह से जो बाहर से आती हैं प्रोडक्ट्स आपके पास आती हैं, यूजुअली खाने पीने की या जो है इससे रिलेटेड और मकसद इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो है, उसमें 3 या 4 लैंग्वेजेस में उसका जो ओनर्स मैनुअल दिया हुआ होता है, ताकि आप उसको जो प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर सकें और उसे एंजॉय कर सकें। तो वो उसे कस्टमाइज कर दिया उस लोकल लैंग्वेज में, प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं चेंज किए। ठीक है। फिर वो जो ग्लोबल और लोकल कंट्रोल है उसको देखें कि मकसद वहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉय करें, एंड दे शुड बी टॉट इन सच अ वे कि वो जो है वो ब्रांड के एसेंस को समझें, और फिर उसके बाद जो है वो उसको उसी तरह लेके चलें जिस तरह ग्लोबली आपने सोचा था। क्योंकि जो आपने तो एक बिग पिक्चर ग्लोबली आप सोचते हैं, उसके बाद जो है लोकली उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना लें, ताकि जो है कल को अगर आप नहीं हैं कोई और आदमी जो है आपकी जगह आ जाता है तो वो उसको ऐसा तरीके से उस सारे काम को कर सके, उसको पता हो कि क्या करना है, कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा। ठीक है। फिर एक ग्लोबल मैनेजमेंट इक्विटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बनाएं और उसको प्लेस करें, ताकि आपको पता चले कि हाउ योर ब्रांड इज़ डूइंग इन डिफरेंट मार्केट्स। क्योंकि आपको फ़ौरन जो है वो फीडबैक आनी शुरू हो जाएगी जैसे ही आप वो सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे, और उससे जो है आप ही का फ़ायदा है, आपके ब्रांड का फ़ायदा है, ताकि जो है वो आप अर्ली स्टेज पे ही करेक्टिव एक्शन लेके जो है ब्रांड को राइट पाथ पे डाल देंगे। अदरवाइज जो है सेल्स जो है वो कम हो जाएंगी, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, और अल्टीमेटली पता चलेगा कि आपको ऑपरेशंस बंद करने पड़े या आपको बहुत ज़्यादा री इन्वेस्ट करना पड़ा जस्ट टू स्टे इन दैट मार्केट। और फिर जो सेकेंडरी आपके एलिमेंट्स हैं उनको लेवरेज करना आपको आना चाहिए, ताकि जो है लोगों को समझ में आए। जैसे हमारे लिए अगर आप ये कहते हैं कि ये जो जर्मन है चीज़, तो हम ऑटोमेटिकली वी हैव दिस अफिनिटी कि यार जर्मन चीज़ जो है वो बेहतर होगी। ठीक है। टेक्नोलॉजिकली वो बेहतर और साउंड होगी, ड्यूरेबल होगी, तो हम उसको फ़ौरन अपना लेते हैं विदाउट किसी से पूछे बगैर कि जी ये कैसे है। ठीक है ना। अब जैसे एप्पल है वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, माइक्रोसॉफ्ट है वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, टोयोटा है वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, जीई वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज।
Boeing, Airbus, they would not compromise because they want the best for their customers and they care about their health and safety. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको एक बेहतर ग्लोबल ब्रांड बनाने में मदद करेंगी और जो है मार्केट को कैप्चर करने में मददगार होंगी. इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ. इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर मिलेंगे और जो है मज़ीद कुछ बातें आपसे की जाएंगी और ब्रांडिंग के हवाले से कि हम इस ब्रांड को मज़ीद किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं और इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है टेक्नोलॉजी की वजह से जो ब्रांडिंग का जो लैंडस्केप है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लग गया है, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत सारे चेंजेस लेके आ गया. सो वील टॉक अबाउट इट इन द कमिंग लेक्चर्स. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.